ठीक है। पैराबोला कल आप पढ़िया सी, पैराबोला मीनस इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 1। सिंपली पैराबोला की सब तो प्राइमरी डेफिनेशन की है, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू 1। इसेंट्रिसिटी इक्वल्स टू 1 तो अपन पता लगता कि व्हाट इज पैराबोला, दैट इज लोकस ऑफ पॉइंट सच दैट it is always equidistant from a fixed point and a fixed line। ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट उदी मूवमेंट है जी दैट विल बी मेकिंग अ पैराबोला if its distance from a fixed point and from a fixed line they are always same। अगर आप किसी पॉइंट ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ मूव ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ तो that is going to give us a parabola। ठीक है, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਪੜਿਆ ਸੀ, let this be the fixed line, let this be the fixed point, if this is s which is h comma k, तो let this be alpha comma beta, let this be ax plus by plus c equals to 0। तो डिस्टेंस sp upon sm is equals to e, and in this case eccentricity is equals to 1। this implies sp should always be equals to sm। तो यही की बन जाती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन जाती है कि अगर अपन ਉਹਦਾ फोकस and directrix given hone, तो how to write the equation of parabola, simply that will be equals to h minus alpha whole square plus k minus beta whole square and its under root will be equals to ah plus bk plus c upon under root of a square plus b square and its mod। this will be the required equation of parabola if simply focus and directrix of that parabola is given to you। ठीक है, सिंपल। फॉर एग्जांपल आप कोई भी एग्जांपल ले लेने हैं, लेट दैट लाइन बी x plus y equals to 4। ठीक है, लेट द पॉइंट बी 3,1 3,1 तो ये ऊपर ही लाई कर रहा है, लेट दिस पॉइंट बी 5,2। ठीक है, let there be the line x plus y equals to 4, let there be the point 5,2। लाइन x plus y equals to 4 की बन गई डायरेक्ट्रिक्स, 5,2 की बन गया ਉਹਦਾ फोकस। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला विल सिंपली बी इक्वल्स टू x minus 5 whole square plus y minus 2 whole square will be equals to a square plus b square कितना आ जाएगा, that will be equals to 2 and here it will be x plus y minus 4। ठीक है, x plus y minus 4 and ਇਹਦਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ स्क्वायर। this will be the required equation of the parabola। ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੌਰਟ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਚ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲੀ ਫੋਕਸ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੈਰਾਬੋਲਾਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾਸ ਦੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੈਰਾਬੋਲਾਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, whose axis is either parallel to or coincident with x axis or its axis is parallel to or coincident with y axis। नॉर्मली जिन्नियां भी गल्लां होणगियां सारे स्टैंडर्ड पैराबोलास बारे ਉਹੀ होणगियां। ओके, तो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ they will be all about standard parabolas। ठीक है, तो इन टोटल देयर आर 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास, आप सिर्फ उन्होंने बारे ही पढ़ांगे आज। ठीक है, एंड प्राइमरी 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास किहड़े होणगे अपने कोले, मैं तुहानूं इमेज दिखा देना उन्हां दी। फर्स्ट प्राइमरी पैराबोला विल बी लाइक दिस with vertex at origin and opening towards positive x-axis। second will be opposite to this with vertex at origin but opening towards negative x-axis। then third will be vertex at origin and opening towards positive y-axis and fourth will be vertex at origin and opening towards negative y-axis। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾਸ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ मतलब पूरा याद रहना चाहिए कि ਇਹਦਾ वर्टेक्स कित्थे है, फोकस कित्थे है, ਇਹਦੀ इक्वेशन किवें दी दिखती है, ਇਹਦੀ इक्वेशन किवें दी दिखती है, सब कुछ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ याद रहना चाहिए। ठीक है, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ठीक है, तो फर्स्ट ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ स्टैंडर्ड पैराबोला ਦੀ। let that be a parabola like this। ठीक है, ਹੁਣ देखो
अगर मैं पैराबोला बनाया तो ऑटोमेटिकली दिस इज अ लोकस ऑफ सम पॉइंट, लोकस है किसी भी पॉइंट का, ठीक है। लेट दैट पॉइंट बी x, y। नाउ इफ दैट पॉइंट इज लाइंग ऑन द पैराबोला तो मतलब ਉਹਦਾ एक डिस्टेंस होएगा फ्रॉम पॉइंट P, दिस पॉइंट P विल बी फोकस एंड ਉਹਦਾ डिस्टेंस होएगा कुछ एक फिक्स्ड लाइन तो दैट फिक्स्ड लाइन विल बी लाइंग ओवर हेयर। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता कि दैट इज गोइंग टू बी द डायरेक्ट्रिक्स, वो की होएगी डायरेक्ट्रिक्स होएगी, ठीक है। हुन अगर ये ओरिजिन है, if this is origin and distance between origin and focus let that be equals to a, मैं मान लेना कि फोकस ते ओरिजिन का डिस्टेंस कितना a। पैराबोला की डेफिनेशन की कहती है कि अ पॉइंट लाइंग ऑन पैराबोला, ओरिजिन इज आल्सो लाइंग ऑन दैट पैराबोला, वो फोकस तो ते डायरेक्ट्रिक्स तो इक्वल डिस्टेंस ते होना चाहिए। तो मतलब अगर ये डिस्टेंस a है तो ये डिस्टेंस भी क्या आ जाएगा अपने को a आ जाएगा, यही होएगा ना। तो कंडीशन सेज दैट इफ इट इज s, if it is equals to m तो sp will be equals to की आएगा, if it is a तो this point will be a, 0, अगर वो डिस्टेंस a है तो पॉइंट की बन जाएगा a, 0। तो sp कितना आ जाएगा अपने को x माइनस a होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इट्स अंडर रूट। sp क्या आ जाएगा अपने को x माइनस a होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इट्स अंडर रूट। नाउ व्हाट विल बी sm, sm की होएगा देखो ए वाला डिस्टेंस की है ए, तो ए वाला डिस्टेंस भी क्या आ जाएगा अपने को ए वाला डिस्टेंस, ए वाला पॉइंट अगर x, y है, x, y है तो मतलब आ डिस्टेंस कितना होएगा x ही होएगा, ए डिस्टेंस कितना हो जाएगा y, बट ए वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा x। तो मतलब sm पूरा कितना हो गया a प्लस x, तो sm इज इक्वल्स टू a प्लस x। डेफिनेशन ऑफ पैराबोला की कहती है sp शुड बी इक्वल्स टू sm, सो अंडर रूट ऑफ x माइनस a होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू a प्लस x। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2ax। की कैंसिल हो रहा है, a स्क्वायर x स्क्वायर, a स्क्वायर x स्क्वायर, वाई स्क्वायर के बराबर आ गया 4a। This is the standard equation of a parabola with vertex at origin and opening towards positive x-axis। आप इन्हें याद कर लेना, रट्टा मार लेना, that parabola will be y square is equals to 4ax, ठीक है। And what is a here? a की है थे, a is distance of focus from origin या distance of directrix from origin, and what will be the distance between focus and directrix then? That will be equals to 2, ठीक है। लिख लो ये बारे जो जो गल्लां आपां नूं याद रखनियां पैणियां वो आपां टेबल बनाने हैं। फिलहाल ये लिख लो कि देयर आर 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास, वो जो फर्स्ट पैराबोला भी आपां स्टैंडर्ड इक्वेशन डिफाइन की है दैट इज वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ठीक है। लिख लो इनू, बना लो जल्दी, फिर अगे चलते हैं। तो यही सब तो ज़्यादा यूज होने वाला पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax दे ही 90% ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन दिखेंगे। लिख लेने ना, where a is distance between focus and origin,
where a is distance between focus and origin. अच्छा, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन की सी x square plus y square equals to r square. इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन की है y square is equals to 4ax. 4a ਨੂੰ 4a ਹੀ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। 4a ਦਾ ਮਤਲਬ 4a, ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ 4a ਨੂੰ 4a ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਵੇ let there be a parabola y square is equals to 12x, find the distance between, सुनो इधर एक बारी, y square equals to 12x है, find the distance between origin and focus, कितना होएगा 3, 4a is equals to 12, a is equals to 3, तो distance कितना ਹੁੰਦਾ हो a ਹੁੰਦਾ। कंपैरिजन करना ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨੋਟਸ ਕਿੱਥੇ ਆ? Because some terms related to parabola, and first will be axis of parabola. चलिए कि एक्सिस की ਹੁੰਦਾ, एक्सिस ऑफ पैराबोला की ਹੁੰਦਾ अपने को, एक्सिस ऑफ पैराबोला इज अ लाइन passing through focus and perpendicular to directrix is called axis. ठीक है, a line passing through the focus and perpendicular to directrix will be called its axis. ठीक है, जिवें सपोज ये तो सिंपल चल रहा है अपने को कि फोकस लाइज ऑन एक्स एक्सिस है, तो ऑटोमेटिकली अपने को एक ही बन गया एक्स एक्सिस है जो दैट इज अ लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स, का मतलब ए वाली जी लाइन जा रही है एक्स एक्सिस, वो एक्सिस बन गई पैराबोला की। बट इन केस अगर टिल्टेड भी हो जाए, कोई वैसी लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ this will be the axis, a line passing through the focus and perpendicular to directrix, that will be called its axis. axis ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ axis ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, a line which is perpendicular to the directrix and it is passing through focus, that will be called axis of the parabola. ठीक है, and the parabola will be symmetric about
पैराबोला विल बी सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस। सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस का मतलब कि ये पूरा सिमेट्रिकल चीज़ होएगी, ये नहीं कि इत्थे कुछ डिफरेंट है इत्थे कुछ डिफरेंट है। जो पार्ट ऊपर जनरेट हो रहा उससे दी बिल्कुल मिरर इमेज की होएगी नीचे जनरेट होगी। इसका मतलब एक होर भी होंदा, पैराबोला विल बी सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस का मतलब दैट इफ 3,4 लाइज ऑन पैराबोला, मतलब 3,-4 विल ऑल्सो लाई ऑन पैराबोला। यही चीज है ना, सिमेट्री का मतलब की है, दोनों का मिरर इमेज होने का मतलब की है कि अगर एक्स वाई ਉਹਦੇ ਤੇ लाई कर रहा तो x,-y विल ऑल्सो लाई ऑन दैट पर्टिकुलर पैराबोला। ठीक है, डायग्राम भी बना देने नाल एक ਆਪਾਂ ओए चुप गल्ला नहीं। ठीक है, so this will be called axis of parabola। ठीक है, सेकेंड थिंग जी अपन नूं इहदे बारे पता होनी चाहिए है, दैट इज वर्टेक्स। वर्टेक्स वर्टेक्स की होया फिर, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद इट्स एक्सिस। ठीक है, पैराबोला जदों अपने एक्सिस नूं जिस पॉइंट ते इंटरसेक्ट करेगा, जिवें इत्थे कर रहा तो इहदा वर्टेक्स कित्थे हो गया 0 0, इस पॉइंट ते कर रहा तो इहदा वर्टेक्स कितना हो गया 0 0, तो दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड वर्टेक्स। अगर इस पॉइंट ते गल करिए, वर्टेक्स कुड बी एनीथिंग अदर देन 0 0 ऑल्सो, जेकर की होएगा दिस डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस आर नॉट पैरेलल और परपेंडिकुलर टू एक्स एंड वाई एक्सिस। अगर वो एक्स ते वाई दे पैरेलल परपेंडिकुलर नहीं होणगियां तो जिहड़ा वर्टेक्स होएगा वो भी की हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सो वर्टेक्स इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद इट्स एक्सिस। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੈਟ देयर बी अ पैराबोला y² = 4ax। ठीक है, एक्सिस की डेफिनेशन पढ़ ली, तो अपने वाले पैराबोला की एक्सिस किहड़ी है, एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस दे सिमेट्रिक है तो ਇਹਦੀ एक्सिस की होगी एक्स एक्सिस। ठीक है, वर्टेक्स कितने है अपने वाले पैराबोला का, दैट इज एट 0, 0। ठीक है, थर्ड पॉइंट दैट वी नीड टू नो इज डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला। ऑर्डिनेट की हुंदा, व्हाट इज ऑर्डिनेट, वाई का जिहड़ा मतलब वाई पार्ट होंदा जिहड़ा किसी पॉइंट का, दैट इज कॉल्ड इट्स ऑर्डिनेट। एब्सीसा एंड ऑर्डिनेट, एक्स नूं आपां एब्सीसा कह दिंदे आ, वाई नूं आपां ऑर्डिनेट कह दिंदे आ। डबल ऑर्डिनेट का की मतलब होएगा, डबल ऑफ वाई। डबल ऑफ वाई का मतलब की होएगा, दैट देयर विल बी सम लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। मान लो ये लाइन है, ਇਹਦੀ लेंथ कितनी होएगी, ए वाला पार्ट कितना होएगा y, सिमेट्री शोज दैट दिस विल आल्सो बी इक्वल्स टू y, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 2y, तो मींस ए की बन गई डबल ऑर्डिनेट। तो की होएगा, डबल ऑर्डिनेट ऑफ पैराबोला विल बी, इट विल बी अ कॉर्ड, इट विल बी अ कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ पैराबोला। it will be a chord perpendicular to the axis of parabola simply। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਹ chord ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, its length will be different, ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ its length will be different। ਠੀਕ ਹੈ, then there comes focal chord। focal chord ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, any chord passing through focus of parabola। कोई भी chord, ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर टू एक्सिस ही होवे, कोई भी chord which will be passing through focus of parabola that will be called its focal chord। ठीक है, मैं इत्थे कोई तुहानू बना के दिखा दा, ये फोकस है, मान लो ए वाली chord जिहड़ी आ रही है that will be called focal chord। ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि की इक्वेशन होएगी, दैट विल बी डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कितना सब कुछ ते डिपेंड करेगा, बट अ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस ऑफ पैराबोला विल बी कॉल्ड इट्स फोकल कॉर्ड। ठीक है, देन जिहड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम
ठीक है, इनू इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। लेटस रैक्टम की हुंदा फोकल कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, मतलब एक ऐसी कॉर्ड जिहड़ी डबल ऑर्डिनेट दी प्रॉपर्टीज नू भी सैटिस्फाई करे ते फोकल कॉर्ड दी प्रॉपर्टीज नू भी सैटिस्फाई करे, दैट काइंड ऑफ कॉर्ड इज कॉल्ड लेटस रैक्टम। ठीक है, अ फोकल कॉर्ड perpendicular to the axis of parabola। ठीक है, a focal chord perpendicular to the axis of parabola will be called its latus rectum। मतलब कि latus rectum की होएगा, this line over here passing through focus and perpendicular to axis, this will be called its latus rectum, that will be called its latus rectum। ठीक है, हुण सुनो, इधर सुनो, अपने कोले पैराबोला की सीगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ਇਹਦਾ फोकस कित्थे सीगा a, 0, तो मतलब कि a वाला पॉइंट की है a, 0। ठीक है, ऊपर वाला पॉइंट की होएगा a पॉइंट सम दैट विल बी ऑफ द टाइप a, y, y कुछ भी हो सकता है बट x तो होता a ही रहेगा, है ना। अगर ये पॉइंट a, 0 है तो ऊपर वाला पॉइंट की होएगा a, y। नाउ a, y विल सेटिस्फाई दिस, a, y अगर इन्हें सेटिस्फाई करेगा तो y स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 4a, x की वैल्यू कितनी है, सॉरी y इक्वल्स टू 4a, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 4a स्क्वायर, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, तो y कितना आ गया अपने को 2a। तो मतलब कि a वाली लेंथ कितनी बन गई 2a, तो ऑटोमेटिकली नीचे वाली लेंथ भी कितनी हो जाएगी 2a। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दैट विल बी इक्वल्स टू 4a। याद कर लेना, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 4a। स्टैंडर्ड है, सेम रहेगी हमेशा, कोई भी तरह का पैराबोला आ जाए इन चारों चों, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड सॉरी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 4a। ठीक है, लिख लो इन्नी चीज़ें, फिर अगे चलते हैं। पॉइंट होर लिख लो इत्थे, फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस की हुंदा डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन पैराबोला फ्रॉम इट्स फोकस, सिंपली दैट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन पैराबोला फ्रॉम इट्स फोकस, फ्रॉम इट्स फोकस। ठीक है, हुण इहदे सुनो, मान लो कोई पॉइंट है x, y, सुनो इधर, मान लो कि देयर इज अ पॉइंट x, y
and focal distance will be equals to sp, means distance of a point lying on parabola from its focus. ये होना चाहिए sp. what will be sp? वैसे कैलकुलेट करने की कोशिश करिए कि आएगा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर द अंडर रूट. बट अगर आप देखिए पैराबोला की डेफिनेशन की कहती है अपन दैट sp विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू sm एंड sm कितना आया जी अपना x प्लस ए. तो फोकल डिस्टेंस इन दिस केस विल बी फॉर y square is equals to 4ax. focal distance will always be equals to x plus a. मतलब there is no role of y in calculating focal distance, it will simply be equals to x plus a. मान लो इत्थे कोई पॉइंट है 9,3 तो ये 3 का कोई रोल नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ simply 9 plus a will be the focal distance of that point from the focus. ठीक है, लिख लो ये भी चीज इसे नाल लिख भी लो, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ y. independent of y of that point, independent of y of that point. ठीक है, चलो 2 मिनट ਲਈ कर दो ਇਹਨੂੰ स्टॉप ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਹਾਂ. ठीक है, इनमें मिटाउंदा नहीं, बाद ਚ नोट कर लियो, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ कर दिए. पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल की सीगी x square plus y square equals to r square है. तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल इज x is equals to r cos theta, y is equals to r sin theta, where theta is the parameter. Similarly, parametric form of y square is equals to 4ax will be x is equals to 80 square and y is equals to 280, where t is the parameter. ठीक है, सिंपली अपन की मान लेना एक पैरामीटर मान लेना t एंड x विल बी इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 280. सेटिस्फाई करवा के देखोगे तो LHS देखो की बन जाएगी, LHS बन जाएगी 4a स्क्वायर t स्क्वायर एंड व्हाट विल बी RHS 4a into 280 सॉरी 280 स्क्वायर. ठीक है, a t स्क्वायर, तो दैट विल बी 4a स्क्वायर t स्क्वायर. ठीक है, तो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax विल बी x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 280, या पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ अ पॉइंट विल बी 80 स्क्वायर कॉमा 2a. ठीक है, ये चीज़ अपन को याद रहनी चाहिए. हुण 2 मिनट लिए इत्थे लिखना नहीं हजे. let parabola be y square is equals to 4ax. find first thing. ठीक है, बस तुसी आंसर देना, दिखना कुछ नहीं. what will be its vertex? vertex की है 0,0. what is its axis? x axis ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ? y is equals to 0. x axis ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? y is equals to 0. ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੈ ਦੀ? what is the equation of its directrix? डायरेक्ट्रिक्स कितने बननी है? फोकस तो ऑपोजिट साइड एक परपेंडिकुलर लाइन
फोकस तो ए वाला डिस्टेंस कितना ए, तो ए वाला डिस्टेंस भी की होएगा ए, तो ए पॉइंट की हो जाएगा माइनस ए, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स विल बी x इक्वल्स टू माइनस ए और x प्लस ए इक्वल्स टू 0। याद रहेगा ना, x इक्वल्स टू माइनस ए और x प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। देन इक्वेशन ऑफ tangent at vertex, equation of tangent at vertex will be, equation of tangent to parabola at vertex will be, equation of tangent, tangent केड़ी होएगी, पैराबोला दी tangent केड़ी बन रही है vertex ते, vertex की है 0 0, y axis दी इक्वेशन की होंदी है x इक्वल्स टू 0, ठीक है, यानी कि y axis, ठीक है। और ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ that is length of latus rectum, length of latus rectum ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਦੀ 4a, end points of latus rectum, what are the end points of latus rectum, a comma y and a comma minus y, and what is y लिखे हुए आप a कॉमा 2a एंड a कॉमा माइनस 2a आप फाइंड आउट किया सी ना ये वाला 2a y इज इक्वल्स टू 2a, तो एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम आर a कॉमा 2a एंड a कॉमा माइनस 2a। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम की है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, latus rectum is a line perpendicular to x axis passing through the focus, focus की ਹੁੰਦਾ at a comma 0, तो equation of latus rectum will simply be x equals to a। latus rectum and directrix, they will always be parallel to each other at a distance of 2a from one another, हमेशा parallel होंगे and they will be at the distance of 2a from one another, ठीक है। focal distance will always be equals to x plus a। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਲਿਖੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 8t square, 2at and last eccentricity will be equals to 1। ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਆ ਜੇ eccentricity will always be equals to 1। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀਆਂ ਰੱਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਰੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਟ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡਾਇਗਰਾਮ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਵਰਟੈਕਸ ਤੇ ਟੈਂਜੈਂਟ, ਵਰਟੈਕਸ ਤੇ ਨੋਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਐਟ ਵਰਟੈਕਸ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਰਮਲ ਐਟ ਵਰਟੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, वो x एक्सिस ही होंगी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट वर्टेक्स की होंगी है x एक्सिस की इक्वेशन की होंगी है y इक्वल्स टू 0, ठीक है। लिख लो, अगले पैराबोलाज आप कल डिस्कस करेंगे।